Hello everyone, how are you? So, we are going to start electromagnetic induction, one of the most interesting chapter, interesting unit for class 12, EMI, electromagnetic induction. So many questions are there from this chapter for NEET, for Z. So very interesting chapter, very conceptual chapter. Concept is there. So you have to go through this chapter thoroughly. You have to understand every facts of this chapter seriously. Alright? So to start this chapter, to start electromagnetic induction, it is very much important to understand the concept of magnetic flux. Because from this concept of magnetic flux, we will do one experiment, induction experiment, and then we will come to this phenomenon, electromagnetic induction. मतलब electromagnetic induction समझने के लिए मुझे ये सारे कुछ समझना पड़ेगा पहले. सो ऐसे तो यू नो दैट ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट 1820 का, वहां पर देखा गया कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड. इफ देयर इज इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor, then surrounding this current carrying conductor there is a magnetic field. Whether its reverse is possible? Yes, reverse possible है क्या? मतलब magnetic field क्या current produce कर सकते हैं? As electric current producing magnetic field, तो क्या magnetic field current produce कर सकते हैं? So yes, in 1831 फेराडे ने फर्स्ट ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि यस, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स इन दिस चैप्टर विल अंडरस्टैंड हाउ दिस इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड. induced electric current, induced EMF will be produced because of the change in magnetic field, because of the change in magnetic flux. तब मतलब मुझे समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, और इसके बाद धीरे धीरे हम ये मैग्नेटिक फ्लक्स, यही मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा और करंट बनाते जाऊंगा. राइट? तो चलो मेरा साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या. So as you know, electric flux. So electric flux or magnetic flux. So concept nearly same. What is magnetic flux? The number of lines of force crossing normally through any solid surface. If we consider any solid surface, then how many number of lines of force crossing through it? That is your magnetic flux. Suppose you see, let us imagine, you see let us consider ये एक मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, here is a magnetic field, and in this magnetic field, सपोज मैग्नेटिक फील्ड, ये बोर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी बोर्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये सारे लाइंस ऑफ फोर्स है. ऑल आर लाइंस ऑफ फोर्स. राइट ना? so many lines of forces are there from north to south. So north to south. Right? So lines of forces are there. This magnetic field may be due to a magnet or due to the current carrying conductor, but we know that magnetic field is there. Now as magnetic field is there, magnetic lines of forces are there.
नाउ इफ वी कंसीडर ए सॉलिड सरफेस, जैसे मेरा ये हाथ, तो ये सॉलिड सरफेस के थ्रू हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मली, जैसे कि ये एक में सरफेस ले लिया, नाउ सारे ये 5 नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ऑल आर क्रॉसिंग नॉर्मली टू दिस सरफेस। सो ये क्या हुई कि यही तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स। आई रिपीट इट अगेन, इसका बहुत सारा मैथमेटिकल कंसेप्ट भी है, धीरे धीरे समझाते जाऊंगा, लेकिन इनिशियली अगर समझना है तो क्या बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू एनी सॉलिड सरफेस। जैसे कि मेरा ये, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं कि ये मेरा सॉलिड सरफेस है, ये मेरा हाथ सॉलिड सरफेस है, और इनमें से 4 लाइन्स ऑफ फोर्स बूम ऐसे जा रहे हैं, तो इनमें से 3 जा पाए, 2 गया और 2 तो ऊपर चला गया, तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स कितना गया? 4। अभी गया 3 गया, number of lines of force crossing normally through this surface is 3. Now number of lines of force crossing through this solid surface is 4. Then how many number of lines of force crossing normally through any solid surface? Now तुम शायद ये समझ रहे हो कि क्यों ये lines of force का झमेला में पड़ना है। So you know lines of force which measures the strength of magnetic field at any point. Already we know that if the lines of forces are very close to each other, the field intensity at that point is stronger, and if the field lines are far apart, the field intensity at that point is very weak. And to explain these things कि मैं ये सॉलिड सरफेस लिया और इनमें से 2 लाइन्स ऑफ फोर्स गया नॉर्मली, ना 10 गया ना 100 गया, एंड मोर नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू दिस सॉलिड सरफेस और लेस नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू दैट सॉलिड सरफेस, it will explain the magnetic flux. So magnetic flux simply the relationship between the number of lines of force and the surface area of that solid surface. So एक solid surface और उसी solid surface में कितना number of lines of force normally cross कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो ये हुई क्यों normally बार बार जाए, not necessary कि every time this lines of force will cross normally। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने ऐसा एक सॉलिड सरफेस ले लिया, हाँ तेरा तो तेरा ही होगा ना। सो ये क्या हुआ, एक सॉलिड सरफेस लिया और उसी सॉलिड सरफेस में क्या हो रहा है कि ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स टन 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 तो ये जा रहे, तो ये एक भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, ये 4 दिया तो चारों में एक भी नॉर्मली नहीं गया, बिकॉज सरफेस एरिया मैंने ऐसा रख दिया। Surface area is placed in such a way that no lines of force crossing normal to it. अगर मैं सरफेस एरिया ऐसा रख देते तो क्या होता, ऐसे ही चले जाते, राइट ना, नॉर्मली ऑल द लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्रॉसिंग नॉर्मली। और मैंने ऐसे ही अगर सरफेस एरिया रखा तो लाइन्स ऑफ फोर्स भी ऐसा छोड़ो ना भाई, तो क्या हो जाते, नॉर्मली होते। मैं लाइन्स ऑफ फोर्स सीधा दिया और सरफेस एरिया ऐसे रख दिया, केस तो बनता ही है ना। तो तब सोल्यूशन क्या है? सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन इफ द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट crossing normally. Generally in different book it is only written that the number of lines of force crossing normally through any surface area. Now my question is that if the surface area is not normal, तब बाबू क्या करोगे? एंड तब सोल्यूशन ये है कि हमें क्या करना है। If the number of lines of force are not crossing normal to the solid surface, तब क्या करना है, तब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा
कंसेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। आई थिंक याद है कि एरिया वेक्टर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया तब बोला कि एरिया वेक्टर क्या है। जैसे कि ये मेरा, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं कि ये मेरा जो सरफेस एरिया है, सो फेस जो है, तो इसमें अगर नोज लिया जाए तो नोज से एरिया वेक्टर करके ऐसा बाहर आएगा। अगर ईआर का ये स्मॉल एलिमेंटरी पार्ट लिया जाए तो इससे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इससे अगर एरिया वेक्टर लिया जाए इससे, और यहां पर अगर स्मॉल पार्ट लिया जाए तो एरिया वेक्टर आएगा ऐसे। तो मतलब इफ वी कंसीडर एनी सरफेस, तो इससे उसी सरफेस, उसी एलिमेंटरी एरिया में जो नॉर्मल आएगा, उसी नॉर्मल का नाम क्या है? एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर मुझे यहां पर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, ये स्मॉल पोर्शन लिया, ये डीएस है, सरफेस एरिया क्या है? डीएस। और डीएस में अगर मैंने एक एरिया, इसी एरिया वेक्टर लिया, टन 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 टन, ये हुई डीएस वेक्टर। इसका नाम क्या है? एरिया वेक्टर। So what is area vector? Area vector is the normal to any elementary surface। मेरा बड़ा सा सरफेस एरिया जिसका नाम है S, और स्मॉल सरफेस एरिया जो लिया वो क्या है? DS। और DS से जो नॉर्मल गया बेचारा इधर गया, और DS ने कितना एंगल बना दिया? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इट इज सपोज थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है। तो एरिया एस भी लग सकते, ए भी ले सकते, ए ले लेता हूँ तो इजी होगा, क्योंकि एस मैंने लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कर रहा हूँ तो ये ए ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे बाबा? बेटा ये बन जाएंगे क्या? ये बन जाएंगे, और ये भी क्या होगा? ये भी ए ही होगा, ठीक है, ए, राइट। So let us consider a surface area A which is not normal to the magnetic lines of force, और magnetic lines of force are not crossing normally। लेकिन मेरा बुक ने बोल दिया कि मुझे वो ही करना है, क्या? नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मली। तो मुझे क्या करना है? तो मैं क्या किया कि एक एलिमेंटरी सरफेस लिया, और एलिमेंटरी सरफेस एरिया का एरिया कितना है? डीए, और उसी से नॉर्मल क्या आया? डीए वेक्टर। और इसी डीए वेक्टर ने कितना एंगल बनाया? मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बनाया। समझ में आ गया? अभी देखो, ये डीए वेक्टर जो है इसका दो कंपोनेंट आएगा, ये परपेंडिकुलर में डी cos थीटा, और हॉरिजॉन्टली क्या आएगा? सॉरी, परपेंडिकुलर में क्या आएगा? डी sin थीटा, और इसी बेस का डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? डी cos थीटा। तो डी cos थीटा। सो अब आएगा मजा, डी cos थीटा। सो द थिंग इज दैट हियर area vector is not normal, surface area is not normal to the electric field, or electric field is not passing normally to this surface area, but dA cos theta का normal है, क्योंकि dA cos theta is the component of dA, और dA cos theta जो एरिया लिया, ये अगर dA cos theta एरिया लिया जाता है तो dA एरिया cos theta से जो नॉर्मल आएगा वो क्या होगा? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और इसीलिए dA cos theta जो एरिया है, देखो एक एरिया है और एक एरिया वेक्टर है, ये भी समझना पड़ेगा। इफ वी कंसीडर the area vector is parallel to the magnetic field or parallel to the electric field, means surface area is perpendicular। और अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो सरफेस एरिया क्या होगा? देखो सरफेस एरिया हो जाएंगे पैरेलल। कैसे? कि जैसे कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहे हैं नॉर्थ से साउथ, ठीक है, तो मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा सरफेस एरिया है, तो मेरा एरिया वेक्टर क्या होगा? ये दैट इज एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन। ये मेरा हाथ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये एरिया वेक्टर भी क्या है? सेम डायरेक्शन में। मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल क्या है? 0 डिग्री है। मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में अगर 0 डिग्री होता है, मीन्स द सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं ऐसा हो जाता हूं, ठीक है, ऐसा हो गया,
और एरिया वेक्टर इस साइड में आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल क्या बन गया, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल बन गया 90 डिग्री। तब मैं बोलूंगा सरफेस एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट if the area vector is perpendicular to the magnetic field, surface area is parallel, and if the area vector is parallel to the magnetic field, means surface area is perpendicular. So here you see that this dA cos theta is parallel to the magnetic field, मतलब ये dA cos theta एरिया जो है ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब dA चाहे परपेंडिकुलर ना हो लेकिन dA cos theta तो बेटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तब जब भी मेरा पूरा एरिया परपेंडिकुलर नहीं आए तो मैं कंपोनेंट निकाल लूंगा और उसी कंपोनेंट जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। सो क्या है कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू दी सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, और अगर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर ना हुआ तब क्या होगा, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट dA cos थीटा इसका क्या हो गया, इससे परपेंडिकुलरली गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तब मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरली फाई बी से डिनोट किया जाता है, क्या है, फाई बी, फाई ई इज फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू, तुम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। So area perpendicular to the direction of the magnetic field, area perpendicular to the direction of magnetic field, area perpendicular to the direction of the magnetic field, और फाई बी इज इक्वल टू, सो ये भी डेफिनेशन समझना पड़ेगा, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक। नाउ वी सी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या है, बी वेक्टर है, राइट, बी है, और एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो पूरा एरिया तो परपेंडिकुलर नहीं है, कौन सा परपेंडिकुलर है, dA cos थीटा परपेंडिकुलर है, समझ में आया ना, dA cos थीटा, तो dA cos थीटा लिख दो, dA cos थीटा लिख दो, ठीक है, ये मैग्नेटिक, ठीक है, तो और अच्छा इसको ये स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ ये पर्सन के लिए हुआ तो डी फाई बी भी दे सकते, और इसको बी dA cos थीटा मतलब बी डॉट dA हो गया, और अगर कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए बना तो क्या होगा, ये सपोज डी फाई बी है फॉर स्मॉल एलिमेंटरी सरफेस एरिया, तो फॉर बी dA cos थीटा, राइट। सो अगर फॉर कंप्लीट सरफेस लिया जाए तो क्या होगा, फॉर होल सरफेस, तब मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करके भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ बी dA cos थीटा, और बी डॉट dA इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, बी डॉट dA लिख सकता हूं, राइट ना, बी डॉट dA, बी डॉट dA भी लिख सकता हूं। सो अभी इसको अगर ऐसे भी लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड V एंड वेक्टर A वेक्टर भी लिख सकता हूं, अगर फॉर कंप्लीट सरफेस एरिया लिया जाए तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ये भी लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एलिमेंटरी पार्ट,
और नहीं तो ये भी लिख सकते हो। सो एनीवे मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये कब आएगा? जब होल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और अगर कंपोनेंट आया तो बाबा डी ए कॉस थीटा। तो ये दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आया ना? सो द थिंग इज दैट व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर। अब तक 1 2 3 डेफिनेशन बोल दिया। हाँ, एक है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, राइट। एंड नंबर 2 क्या बोल दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और थर्डली बोल दिया ये magnetic flux density, magnetic flux is a scalar quantity and is defined as the scalar product of dot product of magnetic field and area vector। समझ में आ गया? हाँ, एक चीज, लेकिन डेफिनेशन कितना 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 हो सकता है, तो कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। कंसेप्ट को बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हुई कि अगर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर ना हो तो भी मैं बाहर कर सकता हूं, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर हो गया तो बहुत 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 अच्छा है। जैसे कि ये मान लेते ये है, अभी ये है, अभी तो ये बेचारा क्या है, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है, तो सरफेस एरिया पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी ए बना, कोई इशू नहीं, हो गया। और इसके लिए तो बेचारा ये आएगा डी फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, क्योंकि उसका पूरा ए परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट क्या है? डी ए कॉस थीटा। समझ में आ गया? चलो नाउ इसको नोट्स को लिख लेना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा नोट्स है, तो पूरा नोट्स डाउनलोड कर लेना, लिख लेना। बट लिखने के पहले खुद का लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज यूज कीजिए, देन ये दिमाग कुछ अलग ही काम करेगा। हाँ, सो की नोट अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का बारे में और डिटेल्स में और कुछ जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑलरेडी मैंने बोल दिया, उसका अभी हिस्ट्री निकालूंगा, इसका मम्मी कौन है, इसका पापा कौन है, ये सब आएगा धीरे धीरे। तो चलो, सो ये मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने बोल दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर। बाबा ये हो गया। अभी इसको बी ए कॉस थीटा भी लिख सकता है, कोई इश्यू नहीं। मेरा मन में जो आता है वही लिखना है, क्योंकि फिजिक्स तो हमारा ही है ना। सो ये क्या हुई कि फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अभी इसका देखो, मैं बोल दिया ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वन इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड अनदर इज एरिया वेक्टर। अभी मुझे इससे स्पेशल केसेस चाहिए, स्पेशल केसेस। नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, cos 90 क्या है? 0। अगर थीटा और थीटा इक्वल टू 270 डिग्री हो गया, तो बी क्या है? वही है। तो मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो क्या आएगा? 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0, राइट ना। So number 2, इसको ऐसा लिख लेता हूं, रेंज दे देता हूं। if 0 is, हाँ, थीटा 0 और 0 से बड़े और लेस देन 90। हाँ, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और greater than 0 but less than 90, तब मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉजिटिव। उसी समय मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव वैल्यू आएगा।
इसकी में तो मैग्नेटिक फ्लक्स का 0 वैल्यू आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा? 0 और 0 से ग्रेटर, क्योंकि 0 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी तो पूरा मैक्सिमम आ गया। VA cos 0 is 1। तो 0 और 0 से ग्रेटर, 90 से कम, सारे थीटा का वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं। अभी देखो थर्ड वन, इफ, हाँ, और इसका भी, और 270 और 360 का बीच में भी होगा। 270 एंड 360 के बीच में भी वही हाल होने वाला है, ठीक ना। अभी इफ थीटा इज, इफ थीटा 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से ग्रेटर थीटा, ठीक है, 270 से कम। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 270 से कम, तो उनमें क्या होगा? थीटा का वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव वैल्यू आएगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, 0 भी वैल्यू होगा। 90 270 में क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0, और 90 का नीचे 0 और 0 से ऊपर इस पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, और पॉजिटिव वैल्यू भी 270 और 360 का बीच में भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, लेकिन निगेटिव वैल्यू भी आ रहे कहां पर? 90 और 270 का बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स निगेटिव ही होगा। समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स depends upon the following factors. Magnetic flux depends upon the following factors: number 1, number 2, number 3, number 4, नंबर 5, नंबर 6, कितना भी हो जाए। सो नंबर 1 क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब B का ऊपर डिपेंड कर रहे। हाँ, B का ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा ही होगा। तो डिपेंड करेगा एरिया का ऊपर, किसका ऊपर? सरफेस एरिया का ऊपर, और डिपेंड करेगा थीटा का ऊपर, और तो सभी एनी कॉम्बिनेशन, अगर फील्ड एरिया दोनों चेंज आए, एरिया फील्ड दोनों चेंज हो जाए, तो इफ देयर इज एनी चेंज ऑफ एनी वन और टू, राइट, तो देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया, बाय चेंजिंग द एंगल। तो मतलब यहां पर मजा आने वाला है। सरफेस एरिया को चेंज करो और क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जैसे सरफेस एरिया ऐसे रोटेट किया तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट जनरेट होने वाला है। मतलब सरफेस एरिया ऐसे कर दिया, कर दिया, तो जैसे ही करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट भी जनरेट हो जाएंगे, और करंट से लाइट जल जाएगी। मतलब मैग्नेट सरफेस एरिया ऐसा है, मैं सरफेस क्या उसका सर्विस एरिया का पोजीशन चेंज हो गया और साथ साथ ही करंट भी जनरेट हो जाएंगे। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर मैं चेंज कर पाया by any means, by changing angle, by changing surface area, by changing the magnetic field, there is a generation of electric current, और वो ही समझना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले और कुछ भी, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, ये तो वो सब भी देखना है। तो चलो ये नोट डाउन कर लिया ना? ओके, नोट डाउन करना, लिखना, अच्छी तरह से समझना, क्योंकि समझने से ही काम होने वाला है। चलो, so SI unit ऑफ, नहीं, इसके पहले भी एक है यार, सॉरी इंडक्शन एक्सपेरिमेंट नहीं, उसी का और भी कुछ लिखते करते। चलो, तो क्या बोल रहा हूं कि SI यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने क्या, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक
तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बड़ी प्यारा सा मैग्नेटिक फ्लक्स, इतना कुछ इसका है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स 5e इज इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स 5e इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, राइट। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अब थीटा 0 मतलब सरफेस एरिया परपेंडिकुलर, देखो गलती मत करना, थीटा 0 मतलब सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है सर, थीटा 0 होने से तो पैरेलल नहीं, थीटा 0 तो एरिया वेक्टर पैरेलल, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर, बाबा समझा ना। और थीटा अगर 90 हो गया मतलब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर बन ही गया मतलब सरफेस एरिया हो गया पैरेलल। कोई काम का नहीं, काम का तो तब होगा जब ये एरिया वेक्टर 0 बनाएगा, तब सरफेस एरिया क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आया। तो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, राइट, b is equal to 1 Tesla and a is equal to 1 meter squared, then 5 is equal to 1 Weber. 1 Weber. So magnetic flux is said to be 1 Weber, or 1 Weber is the magnetic flux which passing through an area of 1 meter square, 1 meter square area से, right? और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 1 टेस्ला। Hence magnetic flux is said to be 1 Weber. If the lines of force passing through an area of 1 meter square normally, right, due to the magnetic field of 1 Tesla। मैं आसान भाषा से समझाता हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर 1 टेस्ला है और उसी से अगर जितना भी लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहे सारे नॉर्मली जा रहे, कहां से, थ्रू एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। और तब जब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उसी मैग्नेटिक फ्लक्स का हम क्या कहूंगा कि 1 वेबर। So 1 Weber, the magnetic flux is said to be 1 Weber when the lines of force are crossing normally through a surface area of 1 meter square, and the magnetic field intensity is, or from a magnetic field intensity of कितना, 1 Tesla। समझ में आ गया। So ये हुई वेबर का डेफिनेशन। अब तुम बोलोगे सर वेबर तो बोल गया एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, ठीक है, तो सीजीएस भी कुछ होगा ना। हाँ सीजीएस भी है, मैक्सवेल है, मैक्सवेल है सीजीएस यूनिट, ठीक है। और मैक्सवेल और वेबर का बीच में भी रिलेशन है। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 to the power -8 वेबर, ठीक है। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 to the power -8 वेबर। समझ में आ गया। तो ये हुए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट। और डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, हाँ ओके, चलो डायमेंशनल फॉर्मूला भी कर लेते, क्या बात। तो 5e इज इक्वल टू क्या है, बी ए कच थीटा, तो मुझे क्या बाहर करना भूल गया मैं, हाँ मैग्नेटिक उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। तो बी इज इक्वल टू क्या है, हाँ एफ इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। तो यहाँ से बी आएगा क्या, एफ बाई क्यू वी साइन थीटा, राइट, ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अभी एफ का तो डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, देखो डायरेक्टली अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड, राइट। सो m1 L1 t-2 डिवाइड बाई q का है at, राइट, v का है L1 t-1, राइट। साइन थीटा का नहीं, एरिया का तो L2, कॉस थीटा का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो हो गया क्या, अभी L1 कैंसिल, m1 L2 t-2 a-1 आई थिंक हो गया, राइट, और कुछ नहीं चाहिए। फिर से मैं देख रहा हूँ एक बार, L1 कैंसिल, m1
L2 T माइनस ये T1 T माइनस 2 A माइनस 1 हो गया द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ गया? चलो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से हाउ इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि मुझे ये करना है कि बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके मुझे करंट प्रोड्यूस करना है, मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करना है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। तो चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट। सो लेट अस सी, यू सी टन 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 टन। सो एज ये देखो बल्ब इज ग्लोइंग, so magnet is at rest, there is no magnetic change, means there is no change in magnetic flux, and as there is no magnetic change in magnetic flux, there is no induced EMF, no current, and so this galvanometer showing no deflection. Now if I am moving this magnet toward the coil, galvanometer shows deflection और बल्ब भी ग्लो हो गया। और जब भी इसको रेस्ट में लेके आता हो ना, कहीं पर अगर मैग्नेट स्टॉप हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं होता, तो बल्ब भी ग्लो नहीं होता, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट नहीं होता, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ, इंड्यूस्ड करंट नहीं हुआ, तो बल्ब कहां से ग्लो होगा? अरे भाई, सो ये हुई कि अगर इफ देयर इज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे टंग 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 टंग, तो ये क्या हो रहा है? देयर इज ए जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बल्ब जलेगा 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 और स्टॉप कर दो, बल्ब भी स्टॉप हो जाएगा। मींस इफ आई एम मूविंग दिस, यू सी, इफ आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, ये कॉइल है, कॉइल से अवे, ऐसे 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 ये कॉइल के टुवर्ड्स लेकर जाओ, बल्ब चल गया। अभी इसको यस स्टॉप कर दिया तो स्टॉप हो गया। मींस यू सी, अभी ये देखो, अभी मैग्नेट को सीधे इसके अंदर से लेके जाता है, फास्ट ग्लो हो गया, स्टॉप हो गया। मतलब दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। Once the magnet stops, there is no change in magnetic flux, there is no generation of induced EMF, there is no current, और बल्ब भी जलेगा नहीं। तो समझ में आया ना? If is as there is a change in magnetic flux, फटांग फटांग से ये देखो, अभी ये गैल्वेनोमीटर देख लो, as I am moving towards the coil, right? तो ये हो गया। अभी एवे फ्रॉम द कॉइल, टन 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 टन। सो क्या हुई कि देयर इज ए जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट ना? तो ये एक्सपेरिमेंट से यही समझ में आया कि इफ देयर इज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर इज ए जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस देयर इज ए जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। समझ में आया ना? सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वट एवर वी ऑब्जर्व, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखा कि यहाँ पर एज देयर इज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हो, देयर इज ए जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर इज ए जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट भी हो रहा है। जैसे कि मैं वो एक्सपेरिमेंट जो देखा वो भी हम अभी भी एक बार देख लेते फिर से, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि ये मैग्नेट है, ठीक है, तो 3 एक्सपेरिमेंट किया था हमने, 1 2 3, राइट? वही समझते हैं, सेम ही थिंग है। जैसे कि ये कॉइल है, ठीक है, तो वो कॉइल में ये गैल्वेनोमीटर है जो कि हमने देखा था, और ये एक मैग्नेट है, ठीक है, वो भी सेम कॉइल है, टन टन टन। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है, और ये मैग्नेट है, टन 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 टन। ये भी गैल्वेनोमीटर है और ये मैग्नेट है। अभी बेचारा ये मैग्नेट इसका
नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जैसे कि ऐसा समझ लो, लाइन्स ऑफ फोर्स में दे देता हो, टन 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 टन, राइट। सो ऐसा है। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिया और मैग्नेट को मैं मूव नहीं करा रहा हूं। इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का भी मूवमेंट नहीं हो रहा, कॉइल का भी मूवमेंट नहीं हो रहा। ना तो मैग्नेट मूव कर रहे, ना तो कॉइल मूव कर रहे। ये मेरा कॉइल है और ये मैग्नेट है और दोनों ऐसे बैठा है। मतलब ना तो इसका चेंज हो रहा है, ना तो इसका चेंज हो रहा है। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल चेंज नहीं हो रहा। एंड एस देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ मैग्नेट, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ कॉइल, नो मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नो ईएमएफ जनरेटेड, और बिच्छू तो एक ही जगह पे, नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। मतलब नो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड नो करंट, नो करंट। समझ में आ गया? अभी काम आया। अभी सेम नॉर्थ साउथ, टाउन 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 टाउन, टन 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 टन। अभी ये मैग्नेट इधर मूव कर रहे, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसा है। सो एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, तब यहां पर डिफ्लेक्शन दिखाएगा एंड इट विल डिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। सो मीन्स एज देयर इज अ change in the magnet, as the magnet is moving towards the coil, there is a change in magnetic flux linking the coil, and hence there is a generation of induced EMF in the coil, and hence there is current। मतलब यहाँ करके करंट आएगा और यहाँ पर बल्ब लगा दो, फैन लगा दो, एसी चला दो, हाँ, इतना नहीं होगा। सो करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये नॉर्थ, ये साउथ, टंग 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 टंग, अभी क्या है, ये मैग्नेट इधर मूव कर रहे हैं, ऐसा मैग्नेट मूव कर रहे हैं। तो मैग्नेट जब मूव किया तो क्या हो गया, ये एज द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तब क्या होगा, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, फिर करंट आएगा और फिर क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा, राइट। सो देयर इज करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, और यहां पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और इंड्यूस्ड करंट आएगा। हर हमें करंट मिलेगा, लाइट मिलेगा, फैन मिलेगा, ये दोनों है, वो दोनों है यहाँ पर। लेकिन ये दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट सेम। ये एक डायरेक्शन में तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया, इधर टाउन, राइट, ना टाउन ना टाउन, और इधर राइट। सो मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अलग अलग है, करंट अलग अलग है। मतलब एक चीज तो है कि yes, there is no change in magnetic field, there is no change in magnetic flux, there is no generation of induced EMF, no generation of induced current, then induced current or induced EMF is only because of this क्या है, change in magnetic flux linking the coil। और उसी डेफिनेशन को लेके जाऊंगा टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बच्चों नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम क्या कर रहे, करंट प्रोड्यूस कर रहे बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। और करंट का कोई शॉर्टेज नहीं होने वाला है क्योंकि करंट हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक, तो चलो लोड शेडिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो करंट बनवा के ही रहूंगा, राइट। अच्छा, ये नन्ना सा प्यारा सा 3-4 क्वेश्चन से, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी जल्दी मुझे भेज देना, राइट। सो 1 2 3 फटक 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 से करके मुझे जल्दी भेज देना। चलो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होना है, वही है जो आप लोगों को समझ में आ गया
कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक चेंज से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट का इंडक्शन होने वाला है, इंड्यूस्ड होने वाला है। मतलब द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स is known as electromagnetic induction। फिर से बोल रहा हूं, the phenomenon of production of induced EMF and hence induced current through a coil due to the change of the magnetic flux linking the coil is known as electromagnetic induction। जैसा ये समझ जाओ कि ये कॉइल है राइट साइड में, ठीक है, और ये मेरा मैग्नेट है, और ये मैग्नेट का टंग करूंगा तो मैग्नेट का जितना भी मूव करूंगा ना यहां पर उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट होते जाएगा। और इसी फेनोमेनन का हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छे तरह से समझ गया होप करता हूं। और कोई भी इस रिलेटेड क्वेरी से तो कमेंट कर देना और मुझे कांटेक्ट कर देना, ठीक है। और है कि विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास क्या फैराडेज लॉ, सबसे प्यारा सा लॉ है ये फैराडेज लॉ, वो समझूंगा ऑन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।